सर्वांना स्वागत आणि सन्मान करतोय। सन्माननीय विष्णू पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। तसेच या ठिकाणी एक जबरदस्त पर्सनॅलिटी सरोलीपाडा गावचे एक सुंदर गायक आहेत आणि कवी सुद्धा आहेत। एक चांगलं नेतृत्व तालुक्यातील भारत भंडारी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं। व्यासपीठावर मी डीवाय फाउंडेशनचे अध्यक्ष योगेश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। थँक्यू। पुन्हा एकदा व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू। गो टू कॉमेंट्री बॉक्स सदीक बाबे सर आणि हरेश सर, धन्यवाद। दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी है, आप बालाजी कप 2016 को देख सकते हैं। सिर्फ YouTube पे जाइए, संतोष नानेकर और गौरव सावंत की जो साइट है हमारी, जो दुनिया की पहली टेनिस क्रिकेट की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है बालाजी कप 2016। दुनिया में जहाँ भी इंसान है, बालाजी कप वहाँ है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और 4 ओवर का मुकाबला है। पहले दौर के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा उस कमेंटेटर को जिसने बालाजी कप में असर रंग भरा है, और वो है मेरे साथी कमेंटेटर काबिल दोस्त अजय घरत। Thank you, Siddiq Bhave. This is big game now. First semi-final from rural cricket between Jai Hind Devrung and Bhargavi Sports Sarolipada. Bhargavi Sports won the toss and elected to bowl first delivery of the game. And it's a good one. Just open the face of the blade there. Vijay Kene, the informed batsman, gets a single on very first ball. Yes, today Vijay Kene hits a half century in Madan Bhuvan Naik Cup. And so far 16 in city cricket. So he has come with a lot of runs here. Jai Hind Devrung played really well in this tournament, and also their opposition, Bhargavi Sports Sarolipada. Both teams are looking good, looking very balanced as far as rural cricket is concerned. The other man, Balwant, is on strike now. Mahesh is the bowler. Loves to bowl in channel, loves to bowl wicket to wicket. Balwant going for a big one, straight up in the air and taken nicely. Simple catch for the bowler. Balwant is walking off. Disaster looking start for Jai Hind Devrung. The left hand stylish batsman Balwant went for a big shot. It hit on the top of the bat, and very easy catch there for the bowler. Jai Hind Devrung losing their first wicket. It's 1 for 1. New man in is Hanuman, another experienced campaigner for Jai Hind Devrung. Very talented all-rounder like Vijay Kene. Oh, he's trying to play down the up there, thickest outside edge. Good bowling this from Mahesh. Playing under floodlights, it's not going to be easy there for the batsman. We have seen in last couple of days, it's looked like a different ball game altogether in floodlights. A very small bowling run up. Another good delivery.
Batsman was playing across the line, shuffling across there, leaving all three stumps. Another wonderful bowling there, wonderful delivery rather. Dot ball. Look at Yes, that. Ajay, I think perfect length and line. Nice telecast comes to you from Shri Swami Samarth movies Sonale. This time a little bit inside out, down to long off. Good effort and fantastic catch there. In fact, it was on the bounce there. One moment I felt that it was catch, but that wasn't the case there. Single for the batsman. Score moves up to 3. Loss of 1 wicket. Fraction shot, pulls it down to deep square. Slight fumble by Sagar Bhoir, but it's not considering any extra run there. Just a single on the last ball of the over. End of the first over, it's 4 for 1. बिल्कुल बहुत अच्छा ओवर हम कहेंगे अजय गरत, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि विजय कैनी का जो विकेट है वो बहुत बड़ा विकेट रहेगा। विजय कैनी ने आज अर्धशतक लगाया सिटी क्रिकेट में भादवड़ में मदन बुआ नाइक चषक में और 16वां अर्धशतक इस सीजन का। लेकिन रात में हमने देखा है चैलेंज पे कि गेंदें रुक कर भी आती है और अधिकांश गेंदें नीचे रहती है। जिस तरह से पिछली गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर विजय कैनी ने। थँक्यू कॉमेडी बॉक्स. तर व्यासपीठावर मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री रामनाथ पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. तसंच माजी सरपंच कालवार देवानंद रामकृष्ण पाटील साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. तसेच रामदास सीताराम म्हात्रे माजी सरपंच कालवार, सर्व मान्यवरांचं बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. तसेच व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. या कार्यक्रमाचे सर्वेसर्वा भिवंडी पंचायत समितीचे माजी उपसभापती सन्माननीय मोतीरामजी चोरगे साहेब आपलं सुद्धा सायंकाळच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. केवल 4 ओवर्स प्रति पारी का मुकाबला है और ऐसे में जो शुरुआत रही है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक कही जा सकती है. जय हिंद देवरूम की सिर्फ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर के बाद. हनुमान की रणनीति किस तरह की रहेगी इस पारी में, ये देखने वाली बात रहेगी. सागर बोइक. बिल्कुल, कल सिटी क्रिकेट में भी उन्होंने 5 विकेटें देर रात ली थी और सपना टूट गया था नाना स्पोर्ट्स का. डबल धमाका है कुछ खिलाड़ियों के लिए बालाजी चषक. इस बार काफी लेट खेला है. बैट का फेस खोलते हुए डिप थर्ड मैन की तरफ रन जरूर मिलेगा, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे तो खेल नहीं पाए. हालांकि स्लाइस करने की कोशिश की थी, गेंद किस करती हुई बल्ले का. रनों की गति को बढ़ाने का एक अतिरिक्त दबाव हमेशा रहता है बल्लेबाजों पर टेनिस क्रिकेट में. ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं है क्योंकि ओवर सब बीतते जा रहे हैं. शॉट ऑफ लेंथ जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा. पहला अतिरिक्त रन आता हुआ जय हिंद देवरूम की पारी में. रन संख्या 6 1 विकेट के नुकसान पर. शुरुआती झटका लगा बलवंत के रूप में. दूसरी गेंद पर विकेट गिरा था, ये तो काफी बाहर थी. सही निर्णय अंपायर का. इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए. वाइड ऑफ मिड विकेट रन जरूर मिला है, लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल भी झलक नहीं रहा है बल्लेबाजी बिल्कुल, में. क्या कारण है? क्या गेंदें अच्छी हो रही है या फिर बल्लेबाज शॉट्स खराब खेल रहे? गेंदबाजी निश्चित रूप से अच्छी हो रही है. गेंदबाजों को श्रेय तो जाता ही है. सागर ने अच्छी तरीके से इस विकेट को पढ़ लिया है. इस बार लगभग फोर्स किया है. फील्डर आ रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए. दूसरे का प्रयास हो रहा है और मानो फुटबॉल ही खेल रहे थे भोलेनाथ.
बिल्कुल ऑन दी अप खेला था, ड्राइविंग लेन से पहले ही, इसलिए सिर भी आसमान में गया था और गेंद भी आसमान में। अजय आपने देखा ऑन दी राइज खेला था वहां पर। विजय किनी ने जब देखा रन नहीं बन रहे, जब रन नहीं बनते दबाव आता है तो फिर बल्लेबाज से गलती हो ही जाती है। ये देखिए ऑन दी अप खेला था। जब गेंदबाज ज्यादा इजाजत नहीं देते बड़े स्ट्रोक खेलने की तो जबरदस्ती स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश होती है और ऐसे में विकेट्स गिरने की संभावनाएं होती है। रन संख्या इस समय 9, 1 विकेट के नुकसान पर। विजय किनी जो कि इनफॉर्म बैट्समैन रहे इस टूर्नामेंट में अपने टीम के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां पैदा करते हुए गेंदबाज। इस बार आड़े बैट से गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छा संपर्क जरूर था, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन, हल्का सा फंबल हुआ था कप्तान से, उसका लाभ उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। ये खासियत है टेनिस क्रिकेट की, आपकी जरा सी भी यदि नजरें हट जाती है गेंद के ऊपर से बतौर फील्डर तो उसका लाभ उठा लेते हैं। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश कर चुकी है, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से मिस टाइम शॉट है, अब फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच छूटता हुआ बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। 2 रन पूरे किए विजय किनी ने। संदेश भोईर काफी तेज गति से दौड़ रहे थे, थोड़ा ओवर एक्साइटेड भी हो गए मुझे लगता है, कुछ ज्यादा ही अंदर दौड़ गए। ये देखिए बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रह गए, कुछ ज्यादा ही दौड़ गए वहां पर और सिर के ऊपर कैच लेने की कोशिश की थी, हाथों से चिटकी गेंद। जीवनदान मिलता हुआ विजय किनी को। इस बार ऑन द राइज गेंद को ड्राइव किया, बहुत खूबसूरती के साथ गैप में निकाल दिया है। लॉन्ग ऑफ से आए फील्डर और जब तक उठाते 2 रन लेने का पर्याप्त अवसर था विजय किनी के पास। एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। बिल्कुल बहुत देर के बाद एक अच्छा स्ट्रोक हमने देखा। ही पिक्स ऑन द फुल एंड फर्मली driven ऑल ऑन द ग्राउंड। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय हिंद देवरुंग टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस सेमीफाइनल मुकाबले में, ग्रामीण क्रिकेट का ये सेमीफाइनल मैच बालाजी चषक 2016 में 12 पर बल्लेबाजी कर रहे विजय किनी बलवंत खाता नहीं खोल पाए थे और हनुमान ने 2 रन बनाए। हमारे बीच गिरीश पाटिल हैं। बालाजी कहाँ भी खेले, गिरीश वहां जरूर रहते। ये तो बालाजी का शो है। 2 ओवर की समाप्ति 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार हो रहे मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भावे। Thank you, Ajay Garat. A beautiful, ideal cricket condition here at the CCG. Light breeze running, bright floodlight, and you are watching Colors of Cricket, Balaji Cup 2016. Welcome everybody, wherever you are, from Dayanand Chorge, Motiram Chorge Saab, Jitu Manerkar, Prabhakar Patil, and Balaji Sport. End of the second over, I think not enough total on the board as far as Devrung concerned. Ajay, Devrung belong to your area because Vijay Kinney, who made half century in evening, but just now he is struggling for a runs. In your way, you are right that Devrung belongs from my area, but the whole world is mine. That's what my belief is. This world is a small village, and you can Yes. fly everywhere. But the postal address is very important in India. 15 for the loss of 1 wicket, end of the second over. And Ajay, I think from here they bring 2 good batsmen on the pitch, and they are looking 40 plus. Bowling has been absolutely outstanding so far. The both bowlers were right on top there. Mahesh bowled exceedingly well, only 4 runs conceded in first over, and then Sagar also bowled pretty well. The fielding was sloppy in second over, and that has been the concern now for Bhargavi Sports.
Yes, yesterday night, Sagar Bhir, who is a trump card bowler, best bowling figure, Soba, in yesterday night against Nana Sport, claimed the very important wicket of Jagdish Naik. Now, change in bowling now is going to be Bholenath, another experienced campaigner. First ball this time played through his legs. Elegant glance, misfield by the fielder. Batsman looking for a second, change their mind and settle for one. One more to total now. Score was up to 16 for the loss of one wicket. It was a full toss delivery on the middle stump, and I think that was an opportunity for the batsman to play a big shot, but he missed out. Bholenath reaches bowling mark, turn from Asha Patil, northeast end. Here he go. Facing him, Vijay Kenny. This time balloon in the air, could be caught, mighty one, but oh yes, in second attempt Kapil taken a lollipop. And that was always on the cards. Vijay Kene was not looking confident out in the center. And in the end, he played once again the miscue hit. Ball was in the air for a long time. Yes, Ajay, reason behind because runs getting very difficult for Vijay Kenny. And why does he tried to clear the boundary? He had to hit the big shot there. But that wasn't the right choice of shot. "16 for the loss of 2 wicket. We are in third over. In place of Vijay Kenny, the new batsman is Rajesh. Now, batsman Hanuman on strike facing Bholenath. Bhargavi Sports, some star player including like Samir Sport, Pimpalgarh, Suraj, lot of star player, Ganesh, Avi, Jericho. This time edging, but dropped by wicketkeeper and ball is racing to the non-stop boundary for 4. Lucky stroke. Absolutely lucky and healthy edge there. Important boundary, the much needed boundary for Jai Hind Devrung. Have a look at that. Cross batted stroke, thick edge between wicketkeeper and fly slip. Dropped by wicketkeeper. Hands to it and ricochets to the boundary. This should have been taken. Look at there. It was an easy chance for the wicketkeeper. Sloppy work by short third-man fielder as well. Important 4 runs. The second semi-final in a ruler between Ekvira Mandkoli and Samir Sport Pimpalgarh. Both team request please sending your captain in front of our commentary box for a welcome toss. You are watching the first semi-final in ruler between Jai Hind Devrung and Bhargavi Sports. Bhargavi controlled the match, but last boundary was slightly costly. Bholenath. Goes to Hanuman, lovely looking drive, but fielder is there, another misfield. 2 more to total now. This is the poor fielding, previous 2 deliveries from Bhargavi Sport. And that is the only concern in this inning so far for Bhargavi Sports. The fielding has been very ordinary so far. And from here, they needing an extraordinary field. Absolutely, this is a big game. The pressure is there on the fielders and batsmen as well, but it's looked like more pressure on the fielders now. Couple of drop catches and ground fielding is also very ordinary. 22 for the loss of 2 wicket. We are in over number 3. Next match, the second semi-final. Then I think the corporation match between Kalyan, Domoli and Bhivandi. Then the big match between Bindian and Jolly Sport Kamatgarh. Another clash of titans between Pioneer and Mahindra Sport. Here goes this time a superb stroke, 6 runs. What a shot. Wow, that is a meaty blow right from the middle of the bat. Sweet sound as ball hit the bat.
Tremendous blow. Power back drive. Massive hit. Beautiful, beautiful, nice execution behind the stroke. And ball is racing all the way to the wide long on for 6. 28 for 2. And Devrung come back in the game. Here we go. This time short try to hook dash ball. Top edge. Once more poor fielding. While in the air, but in front of a short fine leg. Actually, batsman wasn't ready for that short pitch delivery. Good change of length by Bholenath. And that marks end of the third over. 29 for the loss of 2 wickets. हमारे बीच में सरोली ग्राम पंचायत सदस्य रतन भोईर जी मौजूद हैं. स्वर्णमैन, आपसे निवेदन है कि आपको वीआईपी मंच पे जाना है. आपका हार्दिक स्वागत है. रतन भोईर जी, 3 ओवर 29 रन. 40 के ऊपर का एक स्कोर ऐसा है क्योंकि गेंदें अब बल्ले पे तेज नहीं आ रही है. हम कह सकते हैं कि परीक्षा ली जा सकती है देवड़ुंग की तरफ से. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बल्लेबाजों के मन में ही ये बात चलती रहती है फ्लड लाइट्स की. हम यहाँ पर देखें तो कोई कोहरा नजर नहीं आ रहा है हवा में. इसके बाद बड़े मैच है. ग्राउंड से बाइक हटानी है और बिल्डिंगों के सामने नहीं लगानी है. जो सोसाइटी है, आपको हमारे पार्किंग जोन रानी सती ग्राउंड में अपने व्हीकल्स को पार्क करना है अथवा टो करके ली जाई जाएंगी क्योंकि दर्शकों की तादाद अब बढ़ना शुरू हो चुकी. गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में. पहली गेंद बैकफुट पे गए. कंट्रोल पुल स्ट्रोक जमीन के सारे आउटफील्ड में 1 रन. दीपेश को गेंदबाजी दी गई है. अगला मुकाबला दोनों टीमों को तैयार रहना है. एकवीरा मानकोली के कैप्टन और समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ के कैप्टन. अच्छा मुकाबला रहेगा. इस मरतबा हुक कर दिया है सीधा फील्डर के हाथ पे. एक और विकेट. ऐसी स्थिति में विकेट गिरने भी कभी कभी लाजमी हो जाते हैं. बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाते हैं. शॉट अच्छा था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए. सीधे फील्डर के पास खेल बैठे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. नवनाथ ने कोई गलती नहीं की. बिल्कुल, गेंद की जो उछाल थी उसको पूरी तरह से भांप नहीं पाए थे बैट्समैन. विकेट गिरता हुआ यहाँ पर गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छे से कैच पकड़ा था. ये देखिए, हालांकि हरकत में जरूर आगे थे. फुट मूवमेंट अच्छा था. 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पे जय हिंद देवड़ुंग का स्कोर. नए बैट्समैन राकेश बल्लेबाजी को जा रहे हैं जबकि सामना करेंगे बैट्समैन राकेश सीनियर, जबकि राकेश जूनियर हनुमान नॉन स्ट्राइक पर हैं. राकेश, इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. आखिर में पड़ा बैट्समैन को पछताना. गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकल गई. विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं. बहुत ही किफायती ओवर कर रहे हैं इस समय दीपेश. बहुत बढ़िया गेंद थी, फुलर लेंथ. धीमी गेंद लेकिन धीमा बाउंसर बहुत खतरनाक रहता है. जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में टोटली फॉक्स. कुछ भी समझ नहीं पाए थे बैट्समैन. उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके की धीमी गति की गेंद उनको मिलेगी. और वो भी कान के पास. परफ्यूम डिलीवरी. इस मरतबा हुक कर दिया है. बहुत ही खूबसूरती के साथ नहीं रोक पाएंगे. गेंद 4 रनों के लिए लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. फाइन लेग ऊपर था. बैट्समैन ने देखा, शफल किया था. गेंद की लाइन के अंदर आते हुए उसको निकाल दिया था. ज्यादा ताकत भी नहीं झुकनी पड़ी. बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट में इस तरह के शॉट हम देखते हैं. कंट्रोल हुक शॉट जो जमीन के सहारे खेला जाता है. बहुत खूबसूरत शॉट. अच्छा एग्जीक्यूशन था
तेज आउटफील्ड पे गेंद 4 रन। स्कोर इस समय 34 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक फाइटिंग स्कोर तो जरूर बना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान की जो उम्मीदें थी कि 50 के आसपास स्कोर बनाएंगे बल्लेबाज, वहां तक तो नहीं पहुंच पाए हैं। अब केवल एक गेंद शेष है पारी में। दर्शकों की मालूमात के लिए अगला सेमीफाइनल, उसके बाद अनुमान है कि एक फ्रेंडली मैच केडीएमसी और भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में, और उसके बाद जॉली और बी इंडियन और पाइनियर और महिंद्रा। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद को रखा था, देखना है बल्ले से टकराई या नहीं। फाइन लेग पे गेंद को उठाया, बल्ले की जड़ से टकराने के बाद गेंद गई थी। इन्हें आखिर के जो 2 मैच है वो हॉट मैच कहेंगे हम, हॉट केक। तो कुल मिलाकर 35 रन बने, 36 बने, 37 की चुनौती रखी है फाइनल में पहुंचने के लिए। आइए हम आपको टॉस की तरफ लिए चलते हैं। अजय घरत टॉस करने जा रहे हैं। ग्रामीण का सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने वाली टीमें समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ और उनका साथ निभा रही है एक विराम अंकोली। एक तरफ सूरज तो एक तरफ दीपेश, एक तरफ तकदीर माली तो एक तरफ अवी, और एक तरफ है अगर यशपाल माली तो एक तरफ है गणेश। थँक यू कॉमेंट्री बॉक्स। बालाजी चषक 2016 मध्ये आलेल्या तमाम सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। या ठिकाणी आपल्या सर्वांना, सर्व खेळाडूंना स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारिणी सदस्य माननीय श्री रामनाथ पाटील साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच माजी सरपंच कालवार देवानंद रामकृष्ण पाटील साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। तसेच माजी सरपंच कालवार रामदास सीताराम म्हात्रे, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। तसेच मित्र, आपल्यामध्ये गायक उपस्थित झालेले आहेत, जी धून आपण गेले 8 दिवस ऐकलेली आहे। बालाजीचं गीत ज्यांनी लिहिलं आणि गायलेलं आहे ते सापाड कल्याण तालुक्यातील एक सुप्रसिद्ध गायक कपिल पाटील साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। सन्माननीय गायक आहेत आणि नक्कीच जे बालाजी चषकाचं गीत ज्यांनी लिहिलं आणि गायलं ते सन्माननीय गायक आहेत कपिल पाटील सापाडचे। तसेच ग्रामपंचायत सदस्य रतन भोईर, आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। अजय अजय आणि पुढील सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी मी सन्माननीय रामनाथ पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे। त्यांच्या सोबत देवानंद पाटील साहेब आपण सुद्धा जायचंय। नमस्कार आणि पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे बालाजी चषक 2016 मध्ये। स्पर्धेचा आजचा 9वा दिवस आणि ग्रामीण क्रिकेटचा दुसरा सेमीफायनल सामना। या सामन्याची नाणेफेक आम्ही करणार आहोत। हा नक्कीच अजय। तसेच या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय गायक कपिल पाटील यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जायचं। मित्रांनो, बालाजी चषकाचं ज्यांनी गीत लिहिलं आणि गायलेलं आहे ते सन्माननीय गायक यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये जाऊन या ठिकाणी कार्यक्रमाची शोभा वाढवायचे। थँक्यू। ओव्हर टू अजय घरत। धन्यवाद मनोहर तरे। या नाणेफेकीसाठी माझ्या समवेत दोन्ही संघांचे कर्णधार आहेत निखलेश, समीर स्पोर्ट्स पिंपळगर संघाचा कर्णधार, आणि विक्की एकविरा स्पोर्ट्स माणकोली संघाचा कर्णधार। पाहुण्यांचं सुद्धा आगमन होत आहे। वेलकम सर। एक विशेष कॉइन या स्पर्धेसाठी बनवण्यात आलेले आहे नाणेफेकीसाठी। त्याच्या एका बाजूला या स्पर्धेची सर्वेसर्वा सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेब आणि दुसऱ्या बाजूला लोकप्रिय खासदार भारतीय जनता पार्टीचे सन्माननीय कपिल पाटील साहेब। चोरगे साहेबांचा कॉल होता आणि चोरगे साहेबच त्या ठिकाणी आहेत। नाणेफेक जिंकलेले आहे निखलेशने। निखलेश
काय निर्णय आहे पहिली बॅटिंग करण्याचा. आणि काय कारण आहे आपण प्रथम फलंदाजी करणार आहात? पहिले जास्ती रन मारण्याचा प्रयत्न करू. साधारणतः किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल 4 षटकांमध्ये? 45. एक विशेष गोष्ट या ठिकाणी पाहायला मिळते ती म्हणजे ग्रामीण क्रिकेटचा समावेश आपण प्रथमताच पाहतोय चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर. कसं वाटतंय बालाजी चषकामध्ये खेळताना? चांगलं वाटतं. आम्हीच ते आयोजक आहेत. आणि समोरच्या संघाबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? कसा संघ, आपण त्या संघाला कसं लेखता? ना ती भिवंडीमध्ये चांगली टीम आहे. ऑल द बेस्ट निकलेश. विक्की, गोलंदाजी करायची आहे सुरुवातीला. आतापर्यंत जी गोलंदाजी तुमची राहिलेली आहे त्या गोलंदाजांच्या प्रदर्शनाबद्दल तुम्ही संतुष्ट आहात का? हो, खूपच चांगली गोलंदाजी केलेली आहे आमच्या बॉलरांनी. आणि या सामन्यामध्ये विशेष करून अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे, उपांत्य फेरीचा सामना आहे. फायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संघर्ष होणार आहे. तर काही बदल केलेत का आपल्या संघामध्ये? नाही, तोच संघ खेळणार. आणि किती धावांपर्यंत रोखण्याचा विचार आहे आपला? कमीत कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न करू. ऑल द बेस्ट विकी. So news from the toss, Samir Sports Pimpalgarh won the toss and they will bat first. Back to commentary box. थैंक यू अजय गरत. 36-37 का लक्ष्य है फाइनल में पहुंचने के लिए इस वक्त भार्गवी स्पोर्ट्स को. और पिछले 9 दिनों से जिन्होंने बालाजी कप में रंग भरा उनको मैं आवाज़ देना चाहूँगा. इससे पहले आरम नौशाद पटेल, डॉक्टर अरफात नौशाद पटेल और वाइस प्रिंसिपल नौशाद पटेल ने बालाजी कप को नए ख्वाहिशात दी हैं. दयानंद चोरगी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है मापोली से. खेल की शुरुआत माइक्रोफोन पे आ रहे हैं बहुत ही पावरफुल कमेंटेटर सुनील पवार. थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. या ठिकाणी नक्कीच व्यासपीठावर आपण मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करतोय. आजच्या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित झालेले महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारिणी सदस्य आणि एक तालुक्यातील खंबीर नेतृत्व रामनाथ पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी स्वर्गीय साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे. महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारी सदस्य व भिवंडी तालुक्यातील एक भारतीय जनता पार्टीचे खंबीर नेतृत्व रामनाथ पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे. तसेच माजी सरपंच कालवार देवानंद रामकृष्ण पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी पुन्हा एकदा चोरगे साहेबांना विनंती करतो की आपण देवानंद रामकृष्ण पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचे. माजी सरपंच कालवार तसेच माजी सरपंच कालवार रामदास सीताराम म्हात्रे साहेब याच्या स्पर्धेमध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. मी पुन्हा एकदा चोरगे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. व्यासपीठावर मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे. त्यानंतर सामना चालू करायचा आहे. त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित मित्रांनो बालाजी चषकाचं गीत ज्यांनी लिहिलं आणि गायलं ते गायक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. कल्याण तालुका सापाड गावचे कपिल पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय की आपण ह्या गायकाचा सन्मान करायचा आहे. जोरदार टाळ्या आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करूया. तसेच या ठिकाणी ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य सावध ग्रामपंचायत सुनील पाटील उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी पुन्हा एकदा चोरगे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. तसेच ग्रुप ग्रामपंचायत सावधचे उपसरपंच साहेब उपस्थित आहेत दिलीप दळवी यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती करतो की नक्कीच आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करा. सावध गावचे सामाजिक कार्यकर्ते निवृत्ती माळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी चोरगे साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचंय. तसेच सावधगावचे युवा नेता गौरव पाटील जे पेशाने सिव्हिल इंजिनियर आहेत त्यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी मोतीरामजी चोरगे साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचंय. नक्कीच व्यासपीठावर उपस्थित
बालाजी चषकामध्ये सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. थँक्यू. पंचाला विनंती असेल की सामना सुरू करायला हरकत नाही. थँक्यू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स अजय गळत सर. धन्यवाद मनोहर तरे. सामन्याला सुरुवात होतोय. सर्व क्रिकेट रसिकांचं परत स्वागत आहे. बालाजी चषक 2016 मध्ये ग्रामीण क्रिकेटचा सामना रंगतोय. उपांत्य फेरीतला हा सामना है. बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद दूसरा ग्रामीण का सेमीफाइनल, उसके बाद अनुमान है कि कल्याण डोमोली महानगर पालिका और भिवंडी महानगर पालिका का एक नुमाइशी मैच, और उसके बाद बी इंडियन और जॉली का टफ इनकाउंटर, और उसके बाद महेंद्रा और पायनियर का. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, आणि असं वाटलं भावेश सर की थोडस झेल सुटलेला दिसतोय, कारण की डबल साऊंड इथपर्यंत आला होता. निश्चित चांगला चेंडू म्हणता येईल. बिल्कुल देखना चाहेंगे किस तरह से गेंद लहराती हुई चली गई थी विकेट कीपर के पास. सज्ज होते गोलंदाज शरद. यात मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे. हवा तसा फटका मारता आला नाहीये. एक्स्ट्रा कॉर्कडे चेंडू जातोय. या एका धावेने संदेश आपलं खातं उघडतोय आणि संघात सुद्धा खातं उघडलं जाते. भार्गवी स्पोर्ट सरोलीपाडा या संघाचं. डावकुरा फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय दिनेश. क्लास डावकुरा फलंदाज. बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री, कव्हर बाउंड्री आणि शॉर्ट थर्डमॅन, लॉंग ऑफ बाउंड्री. ऑन साइडकडे जर बघितलं आपण, बॅकवर्ड स्कोर लेग, मिड विकेट, वाईडिस मिड विकेट आणि लॉंग ऑन. मात्र फक्त मनगडचा वापर केलेला आहे. टर्न करतो चेंडूला स्कोर लेग कडे. एक धाव पूर्ण होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुंदर पैकी, आणि परत एका धावेने दिनेश यावेळेस मात्र स्वतःचं खातं उघडतोय. संघ धावसंख्या बिनबाद 2. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते पहिल्या षटकामध्ये शरद यांची. गोलंदाज शरद. समोर आहे ग्रामीणचा एक अतिशय उत्कृष्ट फलंदाज भार्गवी स्फोटा संघाचा संदेश. यश मात्र अतिशय वेगवान चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नात सवेर मारा वाईटचा इशारा येतोय. बिल्कुल. इसके बाद जो ग्रामीण का सेमीफाइनल है उसके 4 ओवर जब होंगे तो बी इंडियन के कैप्टन और जॉली के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए. क्वार्टर फाइनल मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है विकी स्पोर्ट कुकसे और बालाजी बी. यावेळेस मात्र फुल टॉसर घेऊन चेंडूला भिरकावून देतोय बॅकवर्ड स्कूलच्या वरतून षटकार. अशा चेंडूवर मात्र फलंदाज वाटच बघतोय की खराब चेंडू कधी होतो आणि त्या चेंडूची मी वाट कधी लावणार, आणि चेंडूची वाट लावतोय बॅकवर्ड स्कूलच्या वरतून तब्बल 6 धावासाठी. संघात धावसंख्या आता मात्र 9. दुहेरी प्रवेश करते 10. धावसंख्या 9 झालेली आहे. खराब चेंडू होता आणि एका चांगला खरपूस समाचार पाहायला मिळाला होता. बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या वरतून चेंडूला तब्बल 6 धावासाठी भिरकवून दिलं होतं. शरद परत सज्ज होतोय. यात मात्र अतिशय देखना फटका, परत स्लॉग स्वीप करतोय आणि त्या दिशेकडे षटकार. मैक्सवेल, ये तो बन गए मैक्सवेल. क्या गजब का शॉट खेला है. लेंथ को कितने जल्दी पढ़ लिया था वहां पर. और बिल्कुल कभी भी मैं इस
बल्लेबाज को देखता हूं ना तो इनमें वो क्षमता है लंबी शॉट खेलने की। ये कद छोटा है देखिए, ये लेकिन देखिए मैक्सवेल का अंदाज, गेंद के आने का इंतजार किया, बॉडी को थोड़ा सा झुका दिया, लेकिन गेंद आर पार जाती हुई। बहुत खूबसूरत शॉट। तर या षटकांनी धावसंख्या आता मात्र वेगात वाढते ती 15. पहिल्या षटकामध्ये एक पॉझिटिव्ह सुरुवात पाहायला मिळते भार्गवी स्पोर्ट या संघाची, कारण की संदेश भोईर अतिशय उत्कृष्ट फटकेबाजी करतोय, शर्यत परत सज्ज होतोय. यश मात्र दबाव साफ दिसतोय आणि परत पंचाचा इशारा होतोय. यश मात्र उजेष्टीच्या बाहेरून चेंडू टाकतोय. सोयर मारा वाईटचा इशारा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या लोकल, इस तरह घटनाएं हम देखते हैं कि जब दो बड़े स्ट्रोक बैक टू बैक आएंगे तो गेंदबाज फिर दूसरे मोहल्ले में ही रहता है. अगदी बरोबर. यश पात्र छोट्या बॅटलीचा वापर फक्त ड्राईव्ह केलेला आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर डीप मध्ये, आणि चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय संदेश यांच्याकडून. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवणार. पहिल्या षटकामध्ये बघतोय आपण की होलसेल मध्ये धाव आलेले आहेत. फक्त 37 धावाचा पाठलाग करता मात्र पहिल्या षटकामध्ये बिनदास बिनबाद 17 भार्गवी स्पोर्ट एक चांगल्या स्थितीकडे. बिल्कुल, क्रिकेट में भले से कुछ कहना उचित नहीं, लेकिन पहले ओवर के आकलन के बाद मैं तो यही कहूंगा कि भार्गव स्पोर्ट्स ने आधा मैच तो जीत लिया. अगदी बरोबर, कारण की पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजावर दबाव टाकलेला आहे आणि आता मात्र समीकरण थोडं सोपं राहिलेलं आहे भार्गवी स्पोर्ट या संघाकडे. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सवलीपाड्याचे प्रभाकर पाटीलचा संघ आहे भार्गवी स्पोर्ट हा संघ, आणि उत्कृष्ट कामगिरी करतोय या स्पर्धेमध्ये. जॉली स्पोर्ट के कैप्टन और बी इंडियन के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है. स्वतः हनुमान येतोय. आता मात्र पर्याय नाही आहे, कारण की ज्या प्रकारे फटकेबाजी पाहायला मिळते संदेश खास आक्रमक मूड मध्ये होतोय. टू फोर 7, 8, 9 इस वक्त हमारे बीच में मान्यवर यहाँ पर आते हुए. सम्मानीय राम भोईर उद्योगपति वल, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस बालाजी चषक में. दयानंद चोरगे जी, मोतीराम चोरगे जी, जीतू मानेरकर, प्रभाकर पाटिल और बालाजी स्पोर्ट्स की जानिब से. तर खास भार्गवी स्पोर्ट या संघाचा दिनेश यांच्यासाठी प्रमोद ठाकरे यांनी त्यांना खास शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पण ज्या प्रकारे सुरुवात पाहतोय आपण, एक चांगली मजबूत सुरुवात. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल धावपलकर धावा आहेत त्या बिनबाद 17. हनुमान परत सज्ज होतोय. यात पात्र अतिशय चांगला चेंडू, आणि चेंडू बॅटची चुंबन घेऊन एसटीच्या हातात जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला हादरा बसतोय भार्गवी स्पोर्ट या संघाला. अतिशय छान चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर बॅटची कड घेतोय आणि एसटीच्या हातात जाऊन विसावतोय. थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. तर नक्कीच व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. वळगावचे सन्मान्य उद्योगपती राम भोईर साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. बालाजी चषक 2016 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच सन्माननीय राजू जोशी, गोवेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. त्याला पण आपल्या टीव्ही मॉनिटर पाहतात आमचे सन्माननीय प्रमुख अतिथी आताच उपस्थित झालेले वळगावचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती राम. पुनश्च एकदा आपलं बालाजी चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. बहुत खूबसूरत कैच का कमाल. का भीतरी किनारा लिया था. अगदी बरोबर, कारण की अतिशय चांगला चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणारा चेंडू होता. बॅटची कड घेतोय आणि एसटीच्या अप्रतिम सुरेख झेल टिपतोय आणि मजबूर होतोय फलंदाजाला वापस पाठवण्यासाठी. तर पहिला गडी बाद होतोय. धावसंख्या आहे ती 17. नेहमीच क्रिकेटमधला अशुभ आकडा मानला जातोय 17, आणि त्या दशकात पहिला खतरा दिलेला आहे भार्गवी स्पोर्ट संघाला. 17 पे मानो स्कोर अटक गया है और बड़े बैट्समैन संदेश आउट हो चुके हैं. हमारे बीच आगमन होता हुआ इस
बालाजी कप के करता धरता और थाना जिला ग्रामीण संपर्क प्रमुख दयानंद चोरगे साहब का आपका हार्दिक स्वागत है बालाजी कप में। नक्कीच व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। या ठिकाणी मुठोलगावचे सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तसेच माजी ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वरजी पाटील आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। बालाजी चषक 2016 मध्ये आलेल्या तमाम सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचं सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। तसेच सन्माननीय सावतगावचे सामाजिक कार्यकर्ते अरुण म्हात्रे साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के कैप्टन और बी इंडियन के कैप्टन आप दोनों को बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला 4-4 ओव्हर का और उसके बाद क्लॅश ऑफ टायटन्स। थँक्यू। आणि व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय पाहुण्यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय। आजच्या स्पर्धेसाठी उपस्थित वळगावचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती सन्माननीय राम भोईर साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। मी या स्पर्धेचे सर्व पंचायत समिती भिवंडीचे माजी उपसभापती मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। वळगावचे सन्मान्य उद्योगपती राम भोईर साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे। तसेच सन्माननीय मुठोलगावचे सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। मी त्यांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे। तसेच माजी ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान आत्माराम वाकडे यांनी करावयाची त्यांना विनंती असेल। तर सामन्याला सुरुवात होते। परत पहिल्या चेंडूवर मात्र हनुमान संघाला आवश्यक होता ब्रेक थ्रूची आणि ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय। तसेच या ठिकाणी उपस्थित माजी ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। तसेच गोवेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते राजू जोशी यांना विनंती असेल आपण पुढे यायचं आहे। आत्माराम वाकडे यांना विनंती असेल की आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। थँक्यू। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स सुनील पवार। धन्यवाद मनोहर तरे सर। तर 37 धावाचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते भार्गवी स्फोट या संघाची, पण दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर जी आवश्यकता होती ब्रेक थ्रूची आणि तो मिळून देतोय संघाला हनुमान। हनुमान सज्ज होतोय गोलंदाजी करण्यासाठी, समोर खेळण्यासाठी भोलेनाथ। याच पाता रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय वेगात धाव घेत आहे दोन्ही फलंदाज। खराब क्षेत्र पाहायला मिळते थोडस। लेग बाईटचा इशारा येतोय। धाव संख्येत भर पडते, धाव संख्या 18। बिल्कुल देखना चाहेंगे किस तरह से वहां पे रिवर्स खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। देवडूंग के पास एक ही चारा है कि विकेटें लेके दबाव बढ़ा सकती। अगदी बरोबर। जर सामना जिंकायचा असेल तर आपल्याला विकेट घेणं गरजेचं आहे। कुठल्या प्रकारे भागीदारी बनू द्यायची नाहीये गोलंदाजाला माहित असेल, कारण की हा सामना जर जिंकायचा असेल पहिल्या षटकामध्ये एक विस्फोटक चांगली मजबूत सुरुवात भार्गवी स्फोट संघात झालेली आहे। हनुमान परत सज्ज होतोय समोर खेळण्यासाठी। डावखुरा फलंदाज दिनेश।
थोडंसं परिवर्तन क्षेत्ररक्षक मध्ये पाहतोय पण कुठल्या प्रकारे पॉईंट नाहीये. बॅकवर्ड पॉईंट बाउंड्री, कव्हर बाउंड्री, लॉंग ऑफ शॉट, थर्ड मॅन, वाईट इज लॉंग ऑन बाउंड्री, मिड विकेट, बॅकवर्ड स्कोर लेग, शॉट फाईन लेग आणि डीप मिड विकेट सीमेरेषेवर एक क्षेत्ररक्षक. यास मात्र फक्त चेंडूला पुश करतोय पॉइंट रिजन कडे आणि अतिशय वेगात सहज सिंगल पूर्ण करतोय फलंदाज दिनेश. दिनेश व्यक्तिगत 2 या धावसंख्येवर संघात धावसंख्या आता मात्र भार्गवी स्फोट संघाची 1/19. बालाजी कप को आप दुनिया में कहीं भी ये देख सकते हैं. सिर्फ यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए बालाजी कप 2016. हनुमान मात्र चांगला षटक हाताळतोय आतापर्यंत. राईट आर्मवर विकेट. यात मात्र आडबॅटने खेळून काढलेलं आहे. स्कोर लेग पण त्याच्या पाठीमागा चेंडूला खेळून काढलेलं आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि परत मात्र भोलेनाथ त्याला आपलं खाता खोलण्यासाठी दुसऱ्या चेंडूची वाट पाहिली होती. आता खातं उघडतोय. या एका धावनी धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 20. हनुमान मात्र चांगलं ब्रेक लावलेले धावसंख्येवर. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आतापर्यंत या षटकामध्ये. बिल्कुल, पहले ओवर में जब 17 रन बने थे मानो लग रहा था कि मुकाबला हो नहीं रहा है, लेकिन इस ओवर में वापसी की है वहां पर हनुमान ने. अभी भी जीतने के लिए जो रन चाहिए वो हैं 17 रन. डेथ बॉलचा इशारा येतोय. हनुमान परत सज्ज होतोय. यास्पता चॉप करण्याचा प्रयत्न होता. अतिशय परत एक चांगला चेंडू. अप्रतिम षटक पाहायला मिळते. जवळपास संघाला वापसी करून दिलेल्या षटकामध्ये हनुमान यांनी. बिल्कुल, दिनेश को कठिनाइयों में रखा है. ये देखिए बैकलीफ को नीचा किया था, चॉप करने की कोशिश की थी पॉइंट और गली के बीच में से, लेकिन अच्छी लंबाई की गेंद बीट वे ऑफ स्टंप के बाद. आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ क्रिकेट बालाजी कप ग्रामीण क्रिकेट का सेमीफाइनल मुकाबला. यास मात्र आडबॅटने परत खेळून काढलेले आहे. स्कोर लेग का सिमरेशकडे एकदा पूर्ण होते. दुसरी धावण्याची मागणी करताय. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पण त्याचा फायदा घेता आला नाहीये. चांगलं रिटर्न करतोय. तर 2 षटक इथं मात्र समाप्त होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर बघितलं आपण धावसंख्या 21 एक बाद. आता मात्र 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता आहे आणि अजून सामना पूर्णपणे सांगता नाही कुठला संघ जिंकेल आणि अंतिम फेरीत दाखल होईल. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होणार आहे पण समालोचक मध्ये परिवर्तन होताना पुढचं धावतं वर्णन करण्यासाठी सज्ज होते सिद्दीक भावे. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पवार. 21 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 2 ओवर में जीतने के लिए 16 रन चाहिए. अभी भी हम कह सकते हैं कि मुकाबले में जान बाकी है. सांस है तो आस है. आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ क्रिकेट बालाजी कप 2016. आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. डैशिंग और डायनामिक फोकस पर्सनालिटी भाजपा की दयानंद चोरगे, मोतीराम चोरगे साहब, साथ ही साथ जीतू मानेरकर, प्रभाकर पाटिल और बालाजी स्पोर्ट्स की जानिब से खेल की शुरुआत. तीसरे ओवर के लिए विजय केनी को लगाया गया. अब विजय केनी के हाथ में है या नहीं पता चल जाएगा. बी इंडियन के कैप्टन, आपको तैयार रहना है टॉस के लिए. विजय सामना करेंगे दिनेश. थोड़ा चंदर पॉल की शैली में, मानो मिड विकेट से गेंदबाज आ रहा हो. पहली गेंद बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव. गेंद को आप जाकर आउटफील्ड में उठाया है. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. इन 2 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ 23 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. बिल्कुल पूरी तरह से गेंद की लाइन को भाप चुके थे और मिड विकेट की तरफ गेंद को उठा दिया था. शॉट के पीछे
प्लेसमेंट नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी कीमती 2 रन अर्जित करते हुए इस वक्त दिनेश। 23 रन 1 विकेट गंवाने के बाद हरीश पंड्या फिर से हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। इस मर्तबा ऊपरी सिरा और दिनेश आउट। बिल्कुल जिस विकेट की तलाश कर रहे थे गेंदबाज, वो विकेट बेस कीमती विकेट मिलता हुआ इस वक्त दिनेश के रूप में अब यहां से लगभग वापसी कर सकती है जय हिंद देवरुंग की टीम। बिल्कुल, इसके बाद ग्रामीण का दूसरा सेमीफाइनल, उसके बाद तैयार हो जाइए 2 हॉट मैचेस के लिए, जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और बी इंडियन, जिनके कई मैच बहुत ही रोमांचक रहे इस ग्राउंड पर। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे महिंद्रा स्पोर्ट और पाइनियर, क्लैश ऑफ टाइटंस। और आज बिल्कुल आते ही काफी मैसेजेस हमें मिल चुके हैं उस मैच के लिए, जो मैच हरीश पंड्या के साथ मैंने किया था, और मुकाबला भी बहुत अच्छा था। पहले ही आकलन हम कर चुके थे कि आखिर के स्लॉग ओवर में जहां रनों की लूटमार मचाई जाती है, अगर 10 रन आते तो मानो आपने आधा मुकाबला हार दिया। बिल्कुल भाई शर्मा, एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, भिवंडी क्रिकेट इसीलिए पॉपुलर है, कोई भी टीम जीते उस टीम को सभी क्रिकेट प्रेमी प्रोत्साहन देते हैं। ये भिवंडी क्रिकेट का एक वैशिष्ट्य बिल्कुल, है। शाहिद खान का मैसेज कितना अच्छा था कि दर्शकों को भी क्रिकेट का सपोर्ट करना चाहिए, टीमों को भी करना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए रखते हैं। इस मर्तबा रुक कर गेंद आई थी, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में टकराई लेग बाय। लेकिन ये मैच तो अब रोमांचक का स्थिति में जा चुका है, क्योंकि अब गेंदे बची हुई इस वक्त 9 और रन चाहिए मैच जीतने के लिए 13। यहां से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आने वाले बल्लेबाज में ग्रामीण के अच्छे खिलाड़ी बल्लेबाज सागर, जो कि ओपन से खेलते हुए एकमात्र अर्धशतक बालाजी ट्रॉफी का पूरा किया था, वो खिलाड़ी आना बाकी है। लेकिन फिर भी कशी हुई गेंदबाजी देख रहे हैं इस वक्त हम भावेश। बिल्कुल जी जान तोड़ कोशिश की जा रही है, और वो जो कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इस मर्तबा शॉट हम पुल कर दिया है कैप में, पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट। नक्कीच बाबेसर, सागर भोईसाठी बक्षीस लागलेलं आहे। लगातार 3 षटकार मारले तर भारत भंडारी सरोली पाड्याचे उद्योगपती यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं बक्षीस लावण्यात आलेलं आहे। बिल्कुल, सागर भुईर भी अर्धशतक लगा चुके हैं इस बालाजी कप में। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, मौका ताड़ा और चौका मारा। बिल्कुल दोनों ही फॉर्मेट में काफी अच्छे ग्रामीण क्रिकेट की तरफ से काफी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सिटी ओपन की तो बात ही अलग है। इस बंदे की क्या लाजवाब गेंद और बल्ले के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं विजय, जो अपनी टीम को अब पराजय के कगार पे ले जाने की तैयारी में, क्योंकि चौका अगर न्यूनतम स्कोर में लगता है तो बड़ा भारी पड़ जाता है। इस मर्तबा बल्ले के मुंह को खोला, नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक, कंट्रोल स्टीयर स्ट्रोक खेला, जब तक उठाते फील्डर 2 रन पूरे। अब तो हम कहेंगे कि भार्गवी स्पोर्ट्स की नजर फाइनल मुकाबले पर। 30 रन, सिर्फ 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल खराब फील्डिंग हुआ था, गेंद को ढूंढते रह गए, लेकिन बल्लेबाज ने इसी बीच 2 रन ढूंढ लिए थे। क्या बेहतरीन तालमेल दोनों ही बल्लेबाज के बीच में था। बेहतरीन क्रिकेट इस वक्त। बिल्कुल, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैच जीता नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही जादुई गेंदबाजी करना होगी। 7 गेंदे 7 रन। विजय इस मर्तबा बहुत खूबसूरत बॉलर बैक ड्राइव, डाउन द ग्राउंड खेला, 1 रन बना और 2 रन पूरे किए। अब पिछले आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे और यहाँ आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए। थँक्यू बाबेसर। तर या ठिकाणी उपस्थित भिवंडी महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक नितीन बजागे साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तसेच सन्माननीय नगरसेवक प्रवीण पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आणि यानंतर जो टॉस झालेला आहे ते मॅच नंतर बहुतेक नगरसेवकांचा एक प्रेक्षणीय सामना आपण पाहणार आहोत। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका नगरसेवक वर्सेस भिवंडी महानगरपालिका नगरसेवक हा प्रेक्षणीय सामना असेल। आज से 2 साल पहले एमएलए ट्रॉफी में मुकाबला हुआ था
और सुरेंद्र गुलवी नगर सेवक ने गोल्डन 6 लगा के केडीएमसी को शिकस्त दी थी। आणि आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये सामना जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावाची आवश्यकता आहे, कारण की भोलेनाथ आणि सागर ही जोडी खेळपट्टीवर आहे आणि या दोन्ही खेळाडूंनी खास प्रभावित केलेल्या या संपूर्ण सिरीज मध्ये खास सागर भोईर यांनी अब 6 गेंदे और 5 रन। आप देख रहे हैं ग्रामीण गढ़ से पहला सेमीफाइनल मुकाबला। ये हमारा वीआईपी डाइस जहां पे इस वक्त कई मुख्य अतिथि मैच का मजा लेते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है बालाजी चषक में। गेंदे बची है 6 और रन चाहिए 5। सुनील पवार, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या होगा इस मैच का नतीजा? बिल्कुल, मेरा तो अनुमान इस वक्त ये है सर कि दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं और इन फॉर्म बल्लेबाज हैं। उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए भार्गवी स्पोर्ट को। खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर गेंदबाजी के लिए राकेश को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन भोलेनाथ। हुक कर दिया है, मिसक्यू हुक स्ट्रोक है लेकिन सेफ लैंडिंग होती भी 1 रन। स्कोर 33 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 रन चाहिए 5 गेंदों में। शॉट ऑफ लेन गेंद थी राकेश की, हुक शॉट खेला था वहां पर, मिसक्यू हुक शॉट, क्योंकि अपने आप को गेंद की लाइन के अंदर नहीं ला पाए थे बैट्समैन। आप जब हुक शॉट खेलते हैं तो आपको गेंद की लाइन के अंदर या गेंद से हटकर खेलना चाहिए। जब आप ड्राइव लगाते हैं तो आंखों के नीचे गेंद के करीब लगाना चाहिए, और जब आप कट शॉट खेलते हैं तो आपको जगह होना चाहिए। राकेश का अब सामना करेंगे बैट्समैन सागर भोईर। बालाजी चषक में अर्धशतक जमाया उन्होंने। या ठिकाणी सन्माननीय संजयभाई म्हात्रे भिवंडी महानगरपालिका नगरसेवक यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आपलं हार्दिक स्वागत आहे। समोरच्या प्रेक्षक गॅलरीमध्ये आपण आहात, आपल्याला विनंती असेल आपण व्हीआयपी डायसवर यायचे। आदरणीय संजयभाई म्हात्रे। बिल्कुल, लॉइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है, वहां पर आपको आना है। ये गेंद इस मरतबा पीछा किया था गेंद का, बहुत दूर किया था गेंद को, लेकिन बल्ला चलाया था। वो जो कहते कि लगा तो मटका नहीं तो झटका, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वाइड गेंदों पे बल्ला चलाना खतरे से खाली भी नहीं होता है। ये देखिए बहुत दूर थी, पीछा किया था उस गेंद का। बिल्कुल खराब गेंदबाजी। स्कोर इस वक्त 35 पे पहुंचा है। केवल 2 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए भार्गवी स्पोर्ट्स को। लेकिन अगले मुकाबले में ग्रामीण क्रिकेट का हो रहा है, लेकिन कई महान क्रिकेटर्स उसमें, यही कारण है हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो लाइनें गई है वहां से आपको दूर रहना है। बार बार कह रहे हैं हम दर्शकों से। इस मरतबा पुल और पावरफुल
और फाइनल में पहुंचती हुई भार्गवी स्पोर्ट्स। अभिनंदन दिनेश, भोलेनाथ, सागर एंड हार्ड लक देवरुंग, हार्ड लक विजय केनी। और बिल्कुल इस जीत के रुपेश, लिए रुपेश जहां कहीं भी हो आपको नीचे आना है। रुपेश डेकोरेटर्स। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है महेश, और महेश आपको वीआईपी डाइस पे जाना है। खेल की जब शुरुआत होगी तो आपके मूड को और तरोताजा करने के लिए माइक्रोफोन पे 4 ओवर के लिए आएंगे हरीश पंड्या। तर भार्गवी स्पोर्ट या संघाने या अंतिम फेरीत दाखल झाल्याबद्दल प्रभाकर पाटील यांनी ऑल दी बेस्ट सांगितलेले आहे. आणि समीर स्पोर्ट साठी खास तर निश्चित सुनील पवार मॅन ऑफ द मॅच. तर निश्चित मैन ऑफ द मैच महेश है। महेश आपको ऊपर जाना है। इज अवॉर्ड टू मनोहर तरे। थँक्यू भावे सर. तर मी 1 मिनिट घेईल मनोहर तरे सर आपलं, कारण की भार्गवी स्पोर्टचे सर्वेसर्वा आणि युवा डॅशिंग नेते आणि सरवली ग्रुप ग्रामपंचायतचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य हे आजच्या आपल्या बिझी शेड्यूलमध्ये येऊ शकले नाही, पण थोड्याच वेळात त्याचं आगमन होणार आहे. त्यांनी भार्गवी स्पोर्ट या संघाला लाख लाख शुभेच्छा सुद्धा दिलेल्या आहेत. ओ टू द मनोहर तरे सर. थँक्यू. आणि या ठिकाणी आपण महेश यश मॅन ऑफ द मॅच देतो. या ठिकाणी उपस्थित वडगावचे सन्माननीय उद्योगपती राम भोईर साहेबांना विनंती असेल की आपण प्रथमतः मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये जे सन्मान चिन्ह आहे ते द्यायचं आहे. तसेच या ठिकाणी उपस्थित भारत भंडारी साहेबांना विनंती असेल जो गिफ्ट टेम्पल आहे तो आपल्या शुभास्ते पण द्यायचा आहे. तसेच ग्रामपंचायत सदस्य आमने श्रावण काकडे यांना विनंती असेल की आपण जो टी शर्ट आहे तो द्यायचा आहे. तसेच सदस्य आनंद दळवी यांना विनंती असेल की आपल्या शुभास्ते आपण हा गिफ्ट टेम्पल द्यायचा आहे. व राजकुमार बार्शी उपसरपंच आमने यांना विनंती असेल की आपण हा बालाजीची ही नक्कीच प्रतिमा द्यायची आहे. वेल डन आणि कॉंग्रॅच्युलेशन महेश. तर नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. भिवंडी महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक संजयभाई म्हात्रे आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच अरुण भोईर सर, अनिल तावरे, वंडरराव भिवंडी, जगदीश नाईक आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आपल्याला विनंती असेल आपण व्हीआयपी डायसवर यायचंय. या ठिकाणी आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय. मी विनंती करतोय चोरगे साहेबांना की आपण पुढील स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. भिवंडी महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक नितीन बजागे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. बालाजी चषक 2016 मध्ये आलेल्या मान्यवरांचं व्यासपीठावर आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय. सन्माननीय नगरसेवक नितीनजी बजागे साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर होत आहे.